technology. So I will talk about my company and the products and the services we are offering to the school for the betterment of management, students, parents and teachers. So Mitsur is India's fastest growing edtech startup providing one-stop solution to the school. So if I say one-stop solution, it does mean that whatever school requires, end-to-end solution we do provide. From infrastructure to academics, everything, whatever you need, we are there for you. So that's why we call ourselves one-stop solution. And in Midsure, we have a range of products. So we started with books, and we have two benchmark books in the market right now. For pre-primary, we have Luma Learn series, and for first to eighth, we have a very unique series, that is Think Trail series. And if this book is not till now on your table, to all the principal and directors, please ensure that you get this series, because I can assure you this is not government or that kind of thing, but this is confidence that the material, the content which we are providing in this particular series, it's non-comparable. And this book is completely integrated, this series is completely integrated with GeoImbibe, the best digital content in the world right now. So all the chapters in this particular series, that is Think Trail series, for class 1st to 8, math, science and social science, please have the sample book at your table, and you can go through it and you can find the level of content, clarity of concepts and illustration, and it is powered, integrated with GeoImbibe. And we have one series, that is Luma Learn series for pre-primary, nursery, LKG, UKG. And Luma Learn series powered by Jadui Pitara. So here you can see one box in front with me, that is Jadui Pitara box. And what is Jadui Pitara? You all are academicians and you know about Jadui Pitara. This is the concept of our education ministry launched by Dharmendra Pradhan ji, that for pre-primaries like nursery, LKG, UKG, first and second, these are the foundational stage, and they don't learn the concept, they don't know the logic, they learn by emotions. So ANEP is launched in 2020, and they introduced the Jadui Pitara concept, that this is a box full of teaching tools, teaching aids, teaching kits. Likewise, I am going to show you one of the. So this is one of the tool for pre-primary, teaching about real life skills, life skill board. So you will get n number of teaching tools, teaching kits and teaching aids for the students. And whole series, the Luma Learn series, will be integrated with for Jadui Pitara. And in the books, see what happens actually. It is scientifically proven that any human being is learning three ways: textual, visual and contextual. So if 33% textual, 33% contextual and 33% kinesthetic or visual or practical learning. So if I am a teacher at your school, you are the director and the principal, you have hired me for the teaching part, and I am teaching at your school, and I have a personal life and I have a professional life. And I have to teach 4 classes, 4 lectures every day, 4 lectures, 4 different topics. And after managing my personal life and professional life, it is practically impossible for any teacher in this world that they can prepare those 4 different topics for 4 different lectures. So they come in general, and after that they have not that bandwidth that they will research that what particular activity. It is already mentioned in NEP or guideline of NCF that we have to do hands-on learning or activity-based learning for the students, because for the pre-primary or foundational stage. But for me, it is practically not possible as a teacher that I will do research and development, and I will arrange the resources, and I will do what will be the most suitable or most relevant activity for any particular topic. So the research and development part is done by us, and we are offering for all the schools Jadui Pitara for nursery, LKG and UKG, and it is not an optional product, it is a compulsory tool for all these schools,
either it's CBSE, ICSE or state board English medium. It's a compulsory solution for every school, and we are offering that integrated with Luma Learn series, or independently you can take it that. And most important product I am going to talk about right now, that is Mitsoor Olympiad Masters 2025. So हमारे देश में आप सब ने, आज के बच्चे और आने वाले बच्चे, दो एग्जाम लिखते हैं. एक एकेडमिक्स के एग्जाम लिखते हैं जिसकी डिग्री मिलती है, क्वालिफिकेशंस मिलती है, लाइक 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन है, इससे कोई जॉब नहीं लगती, बट हम सब लिखते हैं. दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिससे करियर बनता है, लाइक जेई, नीट, मेडिकल इंजीनियरिंग, कैट के एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए. गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं तो 4 ग्रेड के एग्जाम्स हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी. प्राइवेट सर्विसेज में इन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लिखते हैं, और इन सब में वही टॉपिक पूछे जाते हैं जो क्लास 1 से 12 तक इंडिया में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप यूपीएससी ले लो, आप ग्रुप डी ले लो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ टिल 12 तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इवन ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. बट सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारे बच्चे 10th तक 12th तक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना पड़ता है तो अलग से कोचिंग लेना पड़ता है. ऐसा क्यों भाई? बिकॉज स्कूल के लेवल पे किसी भी टॉपिक में 4 इंटेलिजेंस होते हैं: मेमोरी इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस. मेमोरी पार्ट और एप्लीकेशन पार्ट हमारे करिकुलम का रेगुलर हिस्सा होता है, इसलिए बच्चे हमारे एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं. बट उसी टॉपिक के अगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट और एनालिटिकल की पार्ट की बात करते हैं, जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं या एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. इसीलिए इंडिया के हर बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा बनना चाहिए, बहुत यंग एज से. क्यों? क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें 3 चीजें चेक करी जाती है: फोकस, स्पीड और एक्यूरेसी. फोकस मतलब कितने जल्दी आपने क्वेश्चन को पढ़ के समझ लिया. स्पीड मतलब कितने जल्दी आपने सॉल्व किया, क्योंकि टाइम बाउंडेशन होता है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने होते हैं. और एक्यूरेसी मतलब निगेटिव मार्किंग होती है, और ये कोई ओवरनाइट डेवलप होने वाला स्किल नहीं है. हम सब में से ज्यादातर एग्जाम, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने लाइफ में पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब लिखा था सर? कौन सा एग्जाम लिखा? आफ्टर 10th, आफ्टर 12th? आफ्टर 12th. हम में से ज्यादातर लोग ने पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th के बाद मेडिकल या इंजीनियरिंग का लिखा होगा. यस और नो? यस और नो? लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि फोकस, स्पीड और एक्यूरेसी या जो ओएमआर शीट की प्रैक्टिस होती है वो एक दिन फाइनल एग्जाम में जाकर के डेवलप नहीं होगा. इसीलिए इंडिया में इन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लेकिन मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, एनटीएसी, केवीपीवाई, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे लिखने चाहिए. और हमने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है मित्सोर ओलंपियाड मास्टर्स फॉर क्लास 1 to 10 मैथ्स और साइंस के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया है. सो आप यहाँ पे अभी तक जितने भी ओलंपियाड्स, कुछ तो रीजनल लेवल पे है, लोकल लेवल पे है, उसकी बात नहीं करते. नेशनल लेवल पे जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, वो 2 लेवल पे एग्जाम कराते हैं, जोनल और नेशनल लेवल पे. हमने लेवल बढ़ा दिए हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे. हम यहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बच्चे को ओलंपियाड का प्लेटफॉर्म भी देंगे, और बच्चों को ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने के लिए पूरी जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं इसके साथ में. और यहाँ पे जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनके रीजनिंग स्किल डेवलप होंगे, बहुत यंग एज से उनको नेशनल लेवल पे पहचान बनाने का, रिकॉग्निशन बनाने का मौका मिलेगा. जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो हम हर लेवल पे देते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे. और रिवॉर्ड्स सिर्फ बच्चे को नहीं देंगे, बच्चे की जो रैंकिंग होगी वही स्कूल की रैंकिंग होगी. तो बच्चे को भी रिवॉर्ड्स मिलना है, और बच्चे जिस स्कूल से आते हैं उस स्कूल को इक्वली रिवॉर्ड्स मिलना है. तो अगर आप एक रिस्पेक्टिव स्कूल रन कर रहे हैं, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैं, तो आप 100% अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी यंग एज से मौका दे सकते हैं दीजिए. आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं या कोई और भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, बट आपने प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए पेरेंट्स को, उनको अवेयर करना चाहिए. और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम आपके लिए लेके आए हैं मित्सोर ओलंपियाड मास्टर्स का, जहां पे आप अपॉर्चुनिटी देते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों को पहचान बनेगी, स्टेट लेवल पे यहाँ पे एक छोटा सा फेलिसिटेशन अभी सबको, हम लोग को कुछ ना कुछ मिल रहा है, इससे हमारा मोरल हाई होता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपके स्कूल का बच्चा है क्लास 1 का, वो हर साल 2 ओलंपियाड लिखता है, एक मैथ्स ओलंपियाड, एक साइंस ओलंपियाड. सर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हो तो, 2 ओलंपियाड लिख रहा है, वो रैंक नहीं ला रहा है, वो ना तो मैथ्स में रैंक ला रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, बट वो 2 एग्जाम लिख रहा है.
साल के सिर्फ 2 एग्जाम लिखता है मैथ्स के, साइंस के, उसको ये पता चलता है कि 60 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक में जिस क्लास में है उसका अवेयर होता है। पैरेलली उसको जब सर्टिफिकेशन, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एक बच्चा है जिसने 10 साल में क्लास फर्स्ट टू लेके 10 तक कोई एग्जाम नहीं लिखा, और एक बच्चा है जिसने हर साल 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा, एक मैथ्स ओलंपियाड, एक साइंस ओलंपियाड। इसको हर साल 2 पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं, इसको 0 मिल रहा है। अगर इसका रैंक नहीं भी आ रहा है फिर भी इसके पास 10 साल में 20 सर्टिफिकेट्स इसके वॉल्स पे होंगे। इसका कॉन्फिडेंस, इसका मोटिवेशन, 20 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने का कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, एग्जाम में हॉल में बैठा कैसे जाता है, टाइम कैसे मैनेज करा जाता है, फोकस कैसी होती है, एग्जाम की साइकोलॉजी कैसी होती है, एग्जाम का प्रिपरेशन करना बहुत अलग चीज होती है, एग्जाम अच्छा जाना बहुत अलग चीज होती है, एग्जाम में रिजल्ट्स लाना बहुत अलग चीज होती है। ये सब आप सब इस एज में बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जितनी यंग एज में बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे, मौका देंगे, उसका टेम्परामेंट, उसकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। बच्चा रैंक लाए या ना लाए, बट उसको हर साल 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने का जो एक्सपीरियंस होगा उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो बच्चे को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिलना है। जो भी रिवॉर्ड्स है, कैश प्राइजेस है, सर्टिफिकेट है, नेशनल लेवल पे जो बच्चा क्वालिफाई करता है उनको हम एक एजुकेशनल ट्रिप दे रहे हैं नासा का। तो जो भी बच्चे होंगे जो नेशनल लेवल पे क्वालिफाई करेंगे उनको हम एजुकेशनल ट्रिप ऑफ नासा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सबसे बड़ी रिवॉर्ड्स देते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल की रिवॉर्ड्स के साथ। इसके साथ साथ जो हमारा एक प्रोडक्ट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, मैंने बताया कि मिक्सचर में इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, हम अपने आप को वन स्टॉप सॉल्यूशन कहते हैं, बिकॉज़ आपको जो चाहिए, व्हाटएवर यू नीड, वी आर देयर फॉर यू। आपको बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग चाहिए स्कूल लेवल पे, कि किसी भी बच्चे का करियर बनता है 2 चीजों से, स्किल प्लस विल। बच्चे का स्किल क्या है, बच्चे का विल क्या है, दोनों से मैच करता हुआ करियर सॉल्यूशंस क्या हम अवेलेबल कराते हैं। माइंडलर हमारा प्रोडक्ट है। आपके बच्चों को स्कूल के लेवल पे फाउंडेशन कोर्सेज चाहिए मेडिकल इंजीनियरिंग की, हमारे पास श्री चैतन्य का प्रोडक्ट है इनफिनिटी। हम आपको स्कूल लेवल पे 6 to 10 में, 6 to 12 में फाउंडेशन इंजीनियरिंग की कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। जियो इम्बाइब के साथ हमारा टाई अप है। मैंने आपको बताया कि बेस्ट सीरीज इन द वर्ल्ड राइट, सॉरी बेस्ट सीरीज इन द कंट्री राइट नाउ। मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां पे भी पढ़ा रहे हैं, जहां पे भी आपका स्कूल है, आप अपने स्कूल में ये बुक मत लगाएं, दैट इज सेकेंडरी पार्ट, बट आप अपने टेबल पे थिंक ट्रेल की 3 सीरीज जरूर रखिएगा, मैथ्स की, साइंस की, सोशल साइंस की। दिस इज द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ फॉर मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, पावर्ड बाय जियो इम्बाइब। इसके साथ साथ जो हमारा एक प्रोडक्ट है जो आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव है, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, दैट इज मिड स्टोर। आज के डेट में मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना है, कहां जाएंगे मैम? आई बिलीव नायका पे आप जाके देख सकते हैं, राइट? आज के डेट में आपको कपड़े लेने हैं, आप मिंत्रा पे जा सकते हैं, आप कहां पे जा सकते हैं? मीशो पे जा सकते हैं। अभी बिग बिलियन डे सेल आने वाला है फ्लिपकार्ट पे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लेना है तो बेस्ट पॉसिबल डील आपको मिलता है फ्लिपकार्ट पे। अगर मुझे मान लीजिए मेरी मैडम है, मेरी फियांसे है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी वाइफ है, उनको मुझे कुछ गिफ्ट देना है, मुझे उनको घड़ी गिफ्ट देनी है, मैं आराम से फ्लिपकार्ट में जाऊंगा, एक सेक्शन है वॉच का, वहां जाऊंगा और एक नंबर ऑफ वॉचेस मेरे पास आ जाएंगे, वहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। यस और नो? यस और नो? बट आज के डेट में मुझे क्लास 7 के बच्चे को मैथ्स में या साइंस में, मैथ्स या साइंस में क्लास 7 के बच्चे का एक टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे पढ़ाने के लिए एजुकेशनल प्रोडक्ट्स क्या अवेलेबल हैं? देयर इज नॉट अ सिंगल वेबसाइट राइट नाउ इन द मार्केट जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सॉल्यूशन आपको देता है। तो हमने आपके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च किया है, लाया मार्केट में, दैट इज मिड स्टोर। यहां पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड, यहां पे आपको एजुकेशन से यहां पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। 1 मिनट। सो दिस इज आवर ई कॉमर्स वेबसाइट दैट इज मिड स्टोर। जादुई पिटारा जो मैंने आपको बताया कि हमारी ये ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी प्रोडक्ट है, गाइडलाइन है आपकी एनईपी 2020 की, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, उसके यूजेज क्या है, वॉल माउंट टॉयज है, डिजिटल लर्निंग है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, साइंस लर्निंग किट्स, मॉडल्स, इंडोर आउटलेट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स एजुकेशन से रिलेटेड
सो जो भी आपको प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है स्कूल से रिलेटेड, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट मिड स्टोर पे सारी चीजें मिल जाएगी। आपने लेना है नहीं लेना दैट इज सेकेंडरी, बट एज ए डायरेक्टर एज ए प्रिंसिपल प्लीज आप एक बार विजिट करके देखिए, आपको पता चलेगा कि किस क्लास के किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक के लिए क्या क्या पॉसिबल टीचिंग एड्स अवेलेबल है, टीचिंग टूल्स अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि यार ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है साइंस प्रोजेक्ट के अंदर, मैथ्स के अंदर। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे अवेलेबल है मिड स्टोर पे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।